Hello students, we will do page number 18 and this is extinct or endangered. Endangered species are the ones which are not extinct yet but are in the danger of extinction. Okay, it means they are at verge of extinction. They may not exist in future. मतलब कि वो अभी हमें दिख रहे हैं पर आगे फ्यूचर में वो ख़त्म होने वाले हैं. ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो हमारे फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड थॉटलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, एक्सटिंक्शन मीन समथिंग दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. ओके, बिकॉज ऑफ ह्यूमन ऑन पर्पस एंड थॉटलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स दे आर नो मोर. ओके, दे आर एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज. फर्स्ट वन इज दीज रेप्टाइल्स आर ट्रैप्ड फॉर देयर स्किन. दे आर क्रोकोडाइल्स. दीज रेप्टाइल्स आर ट्रैप्ड फॉर दे आर कॉल्ड क्रोकोडाइल. ठीक है, वैसे तो रेप्टाइल्स और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे सी मेंशन किया हुआ है तो that is why we are using crocodile. Okay, another reptiles that are trapped for their skin are snakes, rat snakes, pythons, monitor lizards. They are also killed indiscriminately for their skin. Second one is they are hunted for their horns which are presumed to have medicinal value. ठीक है, they are called rhinoceros. क्या है, इनको इनके हॉर्न के लिए हंट किया जाता है. इनके हॉर्न जो है उनके लिए हंट किया जाता है. उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है. ठीक है, उससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. ठीक है, वैसे तो जो ये मेडिसिन बनाई जाती हैं दे आर मेड इन चाइना. चाइना में मेडिसिन्स के पर्पज़ के लिए राइनो हॉर्न इज़ यूज्ड बट इट्स यूज एज अ स्टेटस सिंबल टू डिस्प्ले सक्सेस एंड वेल्थ. ओके, सो दे आर ऑल्सो हंटेड फॉर स्टेटस सिंबल. Third one is these animal is the world symbol of conservation. It is decreasing in number because of loss of habitat. Giant panda, it is the most powerful symbol in the world when it comes to species conservation. It needs to be conserved. This animal needs to be conserved as they are decreasing in number day by day. Okay, and they are very less in number that are currently present. Okay, pandas are endangered due to loss of habitat. ठीक है, humans have cleared much of the bamboo forest that pandas need to survive. Fourth one is it is hunted for its expensive tusk. These are elephants. Poachers kill about 20,000 elephants every single year for their tusks, which are then traded illegally in the international market for ivory. ओके, यू ऑल नो कि जो एलिफेंट्स के टस्क होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उससे क्या बनती है, उससे मेडिसिन भी बनती है. उससे क्या करते हैं, क्या आपने सुना होगा सबने, हाथी का दांत. ठीक है, हाथी के दांत को क्या किया जाता है, आइवरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और देयर टस्क आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है विच आर देन ट्रेडेड इलीगली इन द इंटरनेशनल मार्केट में. ओके, fifth one is the largest animal killed for its expensive oil. It is whale. Whale is the largest animal that is killed for its expensive oil. Whale oil is valuable commodity. Next one is it is a water animal, an intelligent mammal and a great entertainer. All of you know it better. This is dolphin. Okay, dolphin is also at the verge of extinction. Okay, some species of dolphins are also at the verge of extinction, यानी कि धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं. Seventh one is the largest bird on earth. It was at one time mainly hunted for its tail feathers. It is ostrich. Ostrich is the largest bird on earth. They are mainly hunted for their feathers. They are also hunted for their skin, egg, meat, and they are threatened also by the loss of habitat. Okay, their habitats are also getting exploited. This is our do you know, the largest dinosaur that lived on the earth millions of years ago
बिफोर ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज ऑलमोस्ट 90 फीट लॉन्ग। ठीक है, क्या था? लार्जेस्ट डायनासोर जो हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, जब ह्यूमन एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो वो कितना लंबा था? 90 फीट लॉन्ग था। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट डायनासोर विच वॉज ऑलमोस्ट 90 फीट लॉन्ग. Let's move to page number 19, that is machine era. Many developments in the field of science have made our lives longer and easier. Okay, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस के फील्ड में, उन्होंने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है? ईजियर बना दी है. ओके, मैच दिस डेवलपमेंट्स विद द गिवन डिस्क्रिप्शंस. वी हैव टू मैच दिस डेवलपमेंट्स विद द गिवन डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वन इज अ मशीन यूज फॉर ट्रेसिंग हार्ट मूवमेंट्स. A machine that records the signals from your heart to check for different heart conditions. And the machine used for this purpose is ECG, that is electrocardiography. Electrocardiography machine records the heart movements or heart conditions. Second one is a machine used to produce an image of internal organs without surgery. It is ultrasound machine. Ultrasound machine is used to produce images of not only organs but also of tissues and other structures inside the body. Unlike X-rays, ultrasounds don't use any radiations. Third one is a machine used to revive the patient during the cardiac arrest. This machine is known as defibrillators. Defibrillators are the devices that restore a normal heartbeat by sending an electric pulse or shock to the हार्ट. जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है. ठीक है, क्या करते हैं इसमें कि अगर हमें हार्ट बीट को वापस लेकर आना है, रिस्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? शॉक सेंड किया जाता है टू द हार्ट, ताकि क्या कर सके? हार्ट फिर से काम करना शुरू कर दे अगर वो बंद कर गया है तो. फोर्थ वन इज अ मशीन यूज टू टेक द पिक्चर ऑफ बोन्स. दिस इज कॉल्ड एक्सरे मशीन्स. एक्सरे मशीन्स आर यूज्ड एज बॉडी स्कैनर्स के लिए भी यूज़ की जाती है. जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? एक्सरे मशीन्स का यूज़ किया जाता है. फिफ्थ वन इज अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस अ 3-dimensional इमेज ऑफ फंक्शनल प्रोसेसेस इन बॉडी. दिस मशीन इज नोन एज PET, that is positron emission tomography. PET is an imaging technique, or it is an imaging machine that helps reveal how our tissues and organs are functioning inside our body. Next one is a machine often used to record brain disorder. This machine is known as EEG, that is electroencephalography. It is a technique for recording and interpreting the electrical activity of the brain. It detects abnormalities that is present in our brain. Okay, क्या है इसमें कि अगर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको बताने के लिए कौन सी मशीन होती है? EEG, दैट इज़ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहा जाता है इसे. दिस इज डू यू नो MRI, दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. इट वॉज इन्वेंटेड बाय रेमंड डेमेडियन. इट गिव्स मोर एक्यूरेट एंड डिटेल इमेजेस दैन ऑर्डिनरी एक्सरेज. ओके, एक्सरेज से फार बेटर होते हैं MRI. ठीक है, क्यों होते हैं बेटर ये? क्योंकि ये क्या करते हैं? ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड इमेजेस देते हैं. ठीक है, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है. MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. नाउ मूव टू पेज नंबर 26. Important signs and symbols. Here are given some important signs and symbols and we have to write their correct names. Okay, first symbol represent physically disabled. A person with physical disability may have problems related to movement, posture, grasping and many other problems. ओके, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये जो सिंबल दिखाया जाता है ये व्हील चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है उसका सिंबल दिखाया जाता है. ठीक है, उसको किससे प्रॉब्लम होगी? रिलेटेड टू मूवमेंट. ठीक है, मूव करने में और कोई चीज़ पकड़ने में भी हो सकती है. ठीक है. सेकेंड सिंबल रिप्रेजेंट द रेड क्रॉस. द रेड क्रॉस सिंबल इज़ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स वॉलंटरली फॉर द field of medical services. Okay, it provides medical services to general public. Next symbol represents UNO, that is United Nation Organization. In this there are two symbols.
First symbol represents the olive branch, which is a symbol of peace, while the other symbol represents the UN logo that represents the map of our flat earth. ठीक है, इसमें दो सिम्बल्स ज्वाइन करके बनाए गए हैं. ठीक है, और एक सिंबल क्या है, दैट इज सिंबल ऑलिव सिंबल जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पीस को. एंड अनदर सिंबल दैट इज इन द सेंटर, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फ्लैट अर्थ के मैप को. ठीक है, फोर्थ सिंबल रिप्रेजेंट्स पीस. ठीक है, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई पीस, लव, यूनिटी, हार्मनी. ओके, द फिफ्थ सिंबल रिप्रेजेंट्स द रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. These are the 3 R's: reduce, recycle, reuse. The goal of this 3R is to educate people on how to prevent excessive and unnecessary waste and to limit the consumption of non-renewable resources. ठीक है, कि इनका गोल क्या था, एजुकेट करना पीपल को कि कैसे बचाया जा सकता है अननेसेसरी वेस्ट करने से. ठीक है, और जो कंजप्शन है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की उसको भी लिमिट करना, उसको भी मिनिमाइज करना. सिक्स्थ वन सिंबल रिप्रेजेंट्स द डेंजर सिंबल. द स्कल एंड द क्रॉस बोन सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ अ ह्यूमन स्कल एंड 2 बोन्स क्रॉस्ड टुगेदर बिहाइंड द स्कल यूज्ड एज अ वार्निंग ऑफ डेंजर ऑफ डेथ. जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. ठीक है, इसमें क्या बना होता है, स्कल बना होता है एंड 2 क्रॉस बोन्स बनी होती हैं. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वार्निंग देता है कि आगे खतरा है. सेवंथ वन सिंबल रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ. इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सिंबल. Giant panda, as we have discussed earlier, is the most powerful symbol in the world when it comes to species conservation. World Wildlife is an organization which works for the welfare of plants and animals and helps in reducing involvement of humans in the environment. Okay, World Wildlife क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करता है और हेल्प करता है जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको ये रिड्यूस करता है. ठीक है बेटा, अब आपके 18, 19 एंड 26 पेज नंबर हो चुके हैं. ठीक है, ओके, बाय बच्चों.